What kind of service do you get? That you don't get when the guarantee period. Ma'am, free service about the for damage. For the damage. See, when the or the free replacement. free replacement, this is the difference. When the machine is, suppose तुम्हारी गाड़ी है, अभी फ्लड आया, फ्लड में पानी चली गई, वो गाड़ी की 6 महीना भी नहीं हुआ था परचेज. Now it is 24 months का वारंटी पीरियड है, but the company gives you 24 months वारंटी पीरियड और उसमें रेस्ट्रिक्शंस रहता है. The company gives you 12 months of गारंटी पीरियड. जैसे ही गारंटी आ गया तो ध्यान रखना, गारंटी में 100% रिप्लेसमेंट होता है उस पर्टिकुलर मशीन का. वो कुछ नहीं सुनेगा, वो मशीन ले जाएगा और नया मशीन रिप्लेस होगा. बट इन वारंटी पीरियड देयर इज फ्री सर्विस. तुमको कस्टमर सर्विस तुमको फ्री मिलेगी, लेकिन सर्टेन पार्ट्स ही रिप्लेस होगा, और वो भी अगर वो इंश्योर्ड है तभी रिप्लेस होगा. अंडर इंश्योरेंस एक्ट उसकी रिप्लेसमेंट होती है. वो कंपनी डायरेक्ट उस इक्विपमेंट का पैसा नहीं देता है, वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेकर के तब कस्टमर को देता है. और इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि चार्जेस किसी भी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चार्जेस कस्टमर से लगा ही देती है. तो वारंटी और गारंटी में तुम्हारा यही है, but somehow or the other you get a replacement of that spare part in warranty period. But in guarantee period, you get the 100% replacement of that machine, be it car, be it say mobile phone, ठीक है. But guarantee तुम्हारा हर spare parts का या हर product का नहीं होता है, वारंटी होती है. वारंटी में फ्री रिपेयर, फ्री और सर्टेन डिस्काउंट के बाद तुम्हारा जो है सो चेंज होता है इक्विपमेंट, पर पूरा तुम्हारा मशीन नया नहीं मिलेगा. This is the main difference between warranty and guarantee. But since when we are dealing with gadgets, machine तो machine है, gadget तो gadget है, technical fault आना is not quite unnatural. बहुत नेचुरल है, बहुत लाइकली है. किसी इक्विपमेंट में, किसी मशीन में चांस की बात है कि टेक्निकल फॉल्ट आ गई. नाउ वंस द टेक्निकल फॉल्ट कम्स, और इस तरह की मशीन प्रोडक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, तो ऐसे सिचुएशन में when it is in warranty period, the company takes the machine, sends back to the company, to the concerned company, और वहां से वो फ्री सर्विस होकर के वो रिटर्न होकर आ जाती है. So today we will learning how to write. We will learn how to write a complaint letter. You will see the question on the screen sharing. उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो. Try to understand and recapitulate in your mind what are the different points you will be likely to write in that letter. याद रखना, language हमेशा courteous होगा. तो right now let us see the screen sharing. Can you read the question? Any one of you? I want any one of you to please read the question. Ma'am, the screen is not visible. The screen is not visible. Just a minute. Here. Screen sharing. Clear. See, just give 30 seconds time. Now can you see it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. One of you please read the question. You are Narendra or Sheila, staying at 3 Jawahar Nagar, Jaipur. Last year, you bought a telephone answering system and a smile from the Electronic World of Chandigarh with a warranty of 2 years. Now you discover that there is something wrong with the answering machine. It doesn't record the caller's message. Write a letter to the dealer complaining about problem. Also request him to replace it if needed against the warranty that goes with it. Word limit 200. Very good. So now the question is clear that what was purchased from the company? Anyone please tell me what was purchased from the company? Ma'am, telephone answering system. Telephone answering system. Next.
There are other With things. face smile. Now there are other things also you purchase. You purchase refrigerator, you purchase air condition, you purchase mobile, you purchase laptop, तो or you purchase a car or you purchase a bike. ये सब तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें ज्यादा चांसेस है. However, क्लोथिंग में ड्रेस मटेरियल्स में भी आता है. मैंने एक साड़ी खरीदा, अब उसमें उसको मैंने देखा घर जाकर के when I opened up account there is damage at some corner. वो उसके पैटर्न में पता नहीं चल रहा था. अब हम today next day I went to the shop again. Now what and how should I say or write or mail to that customer so that a needful is done? तो ये बहुत ही डिसिप्लिन और एक स्ट्रेटजी लेके चलना होगा. सबसे पहले since it is a complaint letter, तो from करके you will be writing your name. What is the name given in the question? Ma'am, Narendra or Sheila? Very good. From Narendra. So Narendra has purchased. From Narendra Kumar. और उसका एक short address यहाँ दोगे. A date हो गया तुम्हारा, आज का date. ठीक है. Then to कंपनी का ओनर को क्या कहोगे? सेल्स मैनेजर या कॉमर्स वाले स्टूडेंट प्लीज बता दो क्या कहा जाएगा वहां पर? टू द डायरेक्टर. और बताओ क्या कहा जाएगा? सेल्स मैनेजर कहा जाएगा, एजेंट कहा जाएगा, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट कहाँ से आ गया? उतना ऊपर नहीं जाओ, थोड़ा नीचे लेवल से काम शुरू करो. ठीक है. अब वहां पर दोगे सेल्स मैनेजर. ठीक है. उसका शॉर्ट एड्रेस कौन से शॉप से लिखे हो, ये हो. सपोज करो शॉप नंबर 256 एंड चंडीगढ़ है ना, रोड नंबर, रोड दे दो उसमें सेक्टर 33 या सेक्टर 18 चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लिया गया है. नेक्स्ट डियर सर के बाद अब तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा. इन द सब्जेक्ट कॉलम यू विल राइट डाउन इफेक्टिव. व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट इफेक्टिव? I mean telephone answering system. Telephone answering system. Now when you are writing, यहाँ तक तो ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया. इसको अंडरलाइन करोगे. अब लिखोगे प्लीज रेफर टू द. मैम डीए सर के ऊपर सब्जेक्ट होगा ना? नॉट नेसेसरी. डियर सर, ये देखो सबसे पहले तुम एड्रेस करते हो, सर मे आई कम इन कहते हो, या गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर, एंड देन यू प्रोसीड कि सी दिस इज द प्रॉब्लम, वुड यू लाइक टू हैव ए कन्वर्सेशन राइट नाउ, और दिस इज द प्रॉब्लम. तो सबसे पहले तुम एड्रेस करते हो, गुड मॉर्निंग सर कहते हो, नमस्ते सर कहते हो, डियर सर कहते हो, एंड देन यू पुट योर सब्जेक्ट कि किस टॉपिक पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं. You make the subject clear, but before clearing it, you also make a mark of salutation to the concerned person. Any other question? No ma'am. Very good. Please refer to the above subject. ठीक है, ये clear लिख दोगे. Please refer to the above subject. अब यहाँ पर first paragraph में you will be clearing what is the problem. I purchased a telephone answering system for my office. The cash memo, the photocopy of the cash memo is attached along with this letter, along with this epistle. Cash memo का कुछ details तुम दे देना. Purchased on this date, cash memo number this, and price जो भी था वो दे दोगे, with a warranty of 12 months or 24 months. ठीक है. ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, दिस विल बी द डिटेल ऑफ योर व्हाट यू हैव परचेस्ड. अभी मैं एरर नहीं तुमको लिखना है, अभी सिर्फ तुमको डिटेल देना है. व्हेन डिड यू परचेज इट, एट व्हाट प्राइस डिड यू परचेज इट, फ्रॉम वेयर डिड यू परचेज इट, फ्रॉम योर शॉप लिखना होगा. द गारंटी पीरियड ऑब्लिक वारंटी पीरियड ऑफ दिस मशीन, the photocopy of it is also attached along with this missive, along with this epistle, along with this letter. ठीक है. तो तुम क्या क्या डिटेल बता रहे हो फर्स्ट पैराग्राफ में? क्या परचेज किए, कितने तारीख को परचेज किए, किस शॉप से परचेज किए,
and the photocopy of the cash memo and the photocopy of the guarantee card you are scanning or you are mailing or you are attaching along with this episode. Now full stop, you will leave at whatever point you complete this line, यहाँ पर you leave this line. अगर subject बच रहा है तो you leave this line. Now come to the next line. ये जो next line है इसको भी तुम लोग छोड़ दोगे, नेक्स्ट लाइन छोड़ करके एंटर मारोगे, नेक्स्ट लाइन छोड़ोगे और उसके बाद नेक्स्ट लाइन से बिगिन करोगे फ्रॉम हियर एंड एट दिस पॉइंट यू विल स्टार्ट राइटिंग आई और वी रिग्रेट टू से दैट. ठीक है, थोड़ा सा courteous बट पोलाइट लैंग्वेज तुमको यूज करना रहेगा. In such kind of episodes, remember your language, your pitch of tone, your decency, everything counts a lot. तो यहाँ पर तुमको बहुत केयरफुली लिखना होगा. We regret to say that a few days ago, ठीक है, a few days ago, a telephone answering system, clearly अब बताओगे, थोड़ा elaborate करोगे. Telephone answering combo pack system was purchased. ठीक है, was purchased. अब यहाँ पर कोई लाइन नहीं छोड़ना है. इसी में I am sorry to convey या I am sorry to inform that all of a sudden a strange vibrating sound is coming. I am sorry to inform that since 2 days, since 24 hours, a strange vibrating sound is coming. See, I'll be rubbing out and simply writing the main defects of the system. So defects में number 1 पर तुम्हारा होगा strange vibrating sound. ठीक है, strange vibrating sound. Then auto system, auto mechanism. उस मान लो कि उस मशीन में कोई ऑटो मैकेनिज्म है, ऑटो मैकेनिज्म हैज स्टॉप्ड वर्किंग. ये सेकंड पॉइंट हुआ. देखो ऑटो मैकेनिज्म तुम्हारा रेफ्रिजरेटर में भी होता है. ऑटो मैकेनिज्म तुम्हारा ऑलमोस्ट एवरी गैजेट्स में होता है, इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो. तो जैसे ही वोल्टेज स्टेप अप करता है, हाई होता है, तुम्हारा ऑटो मैकेनिज्म सिस्टम मशीन का काम करने लगता है. तो इसलिए इमीडिएटली बताओगे कि ऑटो मैकेनिज्म सिस्टम हैज हैज, यहाँ पर एंड नहीं होगा, सीज्ड होगा या स्टॉप भी मत लिखना. हैज सीज्ड टू फंक्शन. सीज तुम्हारा come to an end होता है. Since थोड़ा सा हायर क्लास में हो तो try to give some good vocabulary, ये हम लोग का टारगेट है. तो ये सेकंड पॉइंट था, it has ceased to function. Then no sound is there, कोई साउंड भी नहीं है. अगर रेफ्रिजरेटर रहता तो तुम इसमें ऐड कर सकते थे the cooling system of the refrigerator has stopped working. यह डिफंक्शन हो गया है. So this comes under, all this comes under second paragraph. Clear? अब तुम्हारा third paragraph आएगा. Now please pay attention, all of you. Now this is your third paragraph. यहाँ पर at whatever point, ये तीनों point तुमको देना है second paragraph में. थोड़ा सा बड़ा होगा, but remember not to make excess use of words. बहुत ज्यादा elaborate नहीं करना है, to the point. Strange vibrating sound, auto mechanism system has stopped working, no sound is there in the connection. तो ये तुम्हारा एक नंबर ऑफ प्रॉब्लम है. डिपेंडिंग अपॉन अदर मशीन, अब उस मशीन में और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसके बारे में लिटरेचर पढ़ लेना एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग. नेक्स्ट है थर्ड पैराग्राफ में. अब तुम मेंशन करोगे दिस पीस, ये जो पीस लिया गया था, इज अंडर वारंटी पीरियड. ये वारंटी पीरियड में है. नाउ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड what are the uses or what are the privilege that you have given. If this piece is under, मान लो लिख रहे हो 24 months
or 2 years, sorry, 2 years warranty period for, sorry, against, not for, against any technical fault, against any technical fault. याद रखना, ये टेक्निकल फॉल्ट इसको हम लोग कहते हैं। ये तुम्हारा ये सब जो कीवर्ड्स है, टेक्निकल, फिर सीज, ऑटो मैकेनिज्म, वाइब्रेटिंग साउंड, ये सब जो तुम्हारा टेक्निकल वर्ड्स है उस मशीन से रिलेटेड, ठीक है। कंप्लेंट लेटर में इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स को यूज तुमको करना होगा। या अगर ऑफिशियल कंप्लेंट है, सपोज करो तुम एक कॉलोनी में, सॉरी तुम्हारा एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स में ड्यूरिंग मैरिज और ड्यूरिंग एनी प्रोसेशन, आइडल इमर्शन, मूर्ति पूजन, लॉट ऑफ लाउड स्पीकर इन हाई पिच्ड वॉइस गाना बजता रहता है, एंड दिस इज अ नॉइज पोल्यूशन स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम। Now you will write to the city commissioner complaining against it. तो यहाँ पर ये सब तुम्हारा टेक्निकल कंप्लेंट नहीं आएगा, बट तुम्हारा वहां पर एक ऑफिशियल कंप्लेंट आ जाएगा। तो वहां पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज में ऑफिशियल टर्म्स को यूज करके, उसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इसको तुमको अच्छे से समझना होगा एवरी सच सिचुएशन का। ये तुम्हारा एनहांसमेंट होगा नॉलेज का। इतने दिन हो घर में, जब मैंने कहा तुमसे कि 40 to 50 चलो 1 घंटा इंग्लिश पर टाइम दे दो, 40 मिनट्स क्लास में देते हो, 20 मिनट्स और दे दो। इस तरह का चीज लिखने में तुमको सिर्फ 20 मिनट्स लगेगा। डिक्शनरी रखना, तुम्हारे पास हम हाथ में मोबाइल है, विकिपीडिया से ये सारे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को तुम लोग, ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी को देख सकते हो, मिल सकता है। और अगर नहीं मिलता है तो तुम हमको व्हाट्सएप कर दो, आई विल इमीडिएटली गिव यू, ठीक है। बट मेक श्योर दैट यू यूज द राइट टर्मिनोलॉजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक यूज ऑफ राइट टर्मिनोलॉजी। तो टेक्निकल फॉल्ट हो गया। अब यहां से तुम लिखोगे यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस और डू द नीडफुल, ठीक है, do the needful for the right supply of the system or you can say mechanism। यहाँ पर तुम्हारा लाइन खत्म हो गया। do the needful at the earliest, यहाँ पर लिखोगे at the earliest। is it clear? यहाँ पर फिर तब तुम्हारा फिर जिस लाइन में क्या है उसको सबको कर लोगे। now you want, मैंने क्या लिखा था, what did I say when you are writing a letter? Can anyone repeat that term? Every letter must have conviction. Conviction याद है, मैंने यूज किया था इस टर्मिनोलॉजी को। Can anyone tell me what is the meaning of conviction? Can anyone tell me what is the meaning of conviction? अभी तक conviction नहीं आया, अभी तो तुम सिर्फ डिटेल कर रहे थे। So did I use this term conviction? When you are writing how to write a letter, in my first letter, in my first class, I wrote कि कोई भी article हो, कोई भी writer हो, कोई भी letter हो, you should write with conviction. Now, what is the meaning of conviction? What is the Judgment. Judgment? No. And if you are sitting with a dictionary, just find out what is the meaning of conviction. Shivam, let me know the synonym of the word conviction. डिक्शनरी लेके क्लासरूम में बैठा करो। Acquittal. एक्विटल, और बोलो। ये तुम लीगली बोल रहे हो। व्हाट इज कन्विक्शन? यहाँ पर लिखने के टर्म है एन अर्ली एक्शन इन दिस मैटर is expected। अब तुम यहाँ पर अपना, क्योंकि पैसा पेमेंट कर दिए हो, तुम्हारे पास सामान ठीक से नहीं आया है, it is not solving your problem because of which you purchased the equipment। तो now अभी तक तो तुम simply detailing कर रहे थे problem को। Now conviction comes, force come in writing when you write this such kind of lines। And early action in this matter or in this way is expected from your side।
स्ट्रांगली लिखो और ये जान दो बैकग्राउंड में कि डिले हुआ या नहीं हुआ तो इसका एक और है प्रॉब्लम। कंज्यूमर फोरम में कोई भी कस्टमर जा सकता है। हैव यू रेड अबाउट कंज्यूमर फोरम? हैव यू रेड अबाउट कंज्यूमर फोरम? नो। ए कॉमर्स वाले लोग नो मैम। नहीं पढ़े हो कंज्यूमर फोरम? एक्सपेक्टेड एंड will be, थोड़ा सा courteous रहो, will be appreciated। देखो वॉर करना है तो मीठी छुरी से वॉर करो। तो तुम एक तो तुम्हारा सामान गड़बड़ है, तुम्हारा पैसा फंसा हुआ है, तुमको सही सामान चाहिए, तुम प्रॉब्लम में पड़ गए हो, ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनो, कन्विक्शन लाओ, लेकिन एट द सेम टाइम यूज courteous लैंग्वेज। अप्रिशिएट करो कि इट इज इफ द एक्शन इज टेकन इट विल बी अप्रिशिएटेड। देखो अच्छी कंपनी वाले अपने रेपुटेशन पर बहुत ध्यान देते हैं एंड दे विल श्योरली टेक एन एक्शन। नाउ वंस यू क्लोज दिस लेटर यू लीव दिस लाइन, ट्रूली योर्स और सिंसियरली योर्स। दिस इज द क्लोजिंग सैल्यूटेशन। और अब अपना नाम दोगे और मोबाइल नंबर दोगे फॉर फर्दर एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इस कंडीशन में एक पॉइंट तुम लोग का छूट गया। सपोज करो कि तुमने कस्टमर केयर पर ये कंप्लेंट सुनाया, तो यू विल मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ, आई हैव रट द बोर्ड, फर्स्ट पैराग्राफ में यू विल बी मेंशनिंग कि इन दिस रिगार्ड यू कंप्लेन टू द कस्टमर केयर विद कस्टमर आईडी। वो आईडी देता है, वो आईडी को तुम मेंशन करोगे। हाउएवर आफ्टर 7 days since then no action has been taken till now। क्लियर? समझ में आ गया? यस मैम, यस मैम। अब तुम लोग लिख लोगे इस लेटर को, फिर से लिख लोगे। कैन यू राइट दिस लेटर? यस मैम। Yes, ma'am. Tomorrow I want it in the class. I want to see such letters. कम से कम जो पहले वाला भी जो 1-2 दिए हैं वो और ये 3, I want all of you to make an attempt to write that answer in your own words और उसको लिख करके then you will send me on my WhatsApp number where I'll be discussing and at the same time evaluating also। तो उससे क्या होगा कि at least the more clearer picture about how to write such letters will come in your mind and in your thing everything। Any question to ask? और कुछ पूछना है तुम लोग को? अभी तक जितना पढ़ाए हैं इसमें से क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. Nothing? Okay. So what other forms of complaint letter do we come across? Can anyone tell me? ये तो था तुम्हारा बिजनेस से रिलेटेड। ये बिजनेस लेटर का जो कंप्लेंट लेटर होता है वो था तुम्हारा ये कंप्लेंट। अब सेकंड हम लोग पढ़ते हैं, इसको करते हैं ऑफिशियल कंप्लेंट। ठीक है, ऑफिशियल कंप्लेंट होता है, देन पब्लिक कंप्लेंट होता है, ये न्यूज़पेपर के थ्रू तुम करोगे, पब्लिक कंप्लेंट होता है। और देन एक जनरल कंप्लेंट होता है जो ऑफिस में होता है। बट कंप्लेंट इज ए कंप्लेंट जो मैटर एंड टोन ऑफ लैंग्वेज है। देखो सबका एक एक एग्जांपल कर लो, बिजनेस का आज हम बता दिए हैं। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक वन ऑफिशियल कंप्लेंट, देन वन आई विल, जैसे तुम लोग को एग्जांपल दिए, बहुत जोर जोर से लाउड स्पीकर बज रहा है, तो ये तुम्हारा पब्लिक कंप्लेंट हो गया। अब ऑफिशियल कंप्लेंट बोल रहे हैं, सपोज करो तुम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और तुम्हारा टेलीफोन जो है सो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सपोज करो तुम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तुमको गवर्नमेंट क्वार्टर तुम्हारे प्रिविलेज में है, यू वांट दैट क्वार्टर सो दैट यू कैन शिफ्ट विद योर फैमिली टू स्टार्ट वर्क एट अ न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो इसमें डिले हो रहा है, इन सब कंडीशन में यू विल राइट अ कंप्लेंट लेटर। ठीक है, सपोज करो तुम्हारा इंटरनेट सर्विस, बीएसएनएल का इंटरनेट सर्विस है, इट इज नॉट फंक्शनिंग वेल, वो हर मंथ में तुमको बिल दे देता है, पुअर बिलिंग भी आ रही है, कहीं पर टैंपरिंग हो रहे हैं तुम्हारे डाटा का। तो ऐसे सिचुएशन में टेलीफोन डिपार्टमेंट को तुम एक कंप्लेंट लेटर दोगे टू हैव अ चेक, और जल्दी से जल्दी उसको कंसर्न पर्सन शुड कम एंड डू द नीडफुल फॉर द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा ऑफिशियल कंप्लेंट आ गया। अब फिर तुम्हारा जनरल कंप्लेंट होता है।
जनरल कंप्लेंट तुम मेरे अगेंस्ट में दे सकते हो प्रिंसिपल को या किसी और को, वो भी लिख देना। हम अपना कंप्लेंट तुम लोग से खुद ही तैयार करवा देंगे। डोंट वरी, यू कैन फील फ्री टू राइट वट एवर प्रॉब्लम यू हैव अगेंस्ट मी एंड what changes you want in that complaint letter, वो मेरे अगेंस्ट में तुम लिख सकते हो। I will help you out. Any question? Any question? No, ma'am. ये सब तैयार रहना। In the next class we will be learning all this, and in the tomorrow's class जो बताए हैं तुम लोग को business complaint हो गया, and then तुम्हारा था what else? Placing order. This was your homework, and then what was there? Inquiry letter. ये तीनों तुम्हारा homework है। ये this is your homework, and you will write it down and screenshot उसका screen पर WhatsApp करोगे। Any question to हाँ? Any question to ask? No, ma'am. Shall I conclude the class? No, ma'am. Shall I conclude the class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, bye bye. Come up with your. Bye. Ma'am. Thank you all of you. Thank you, ma'am. Thank you.